चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. This So call is now being recorded. okay, for today, what we have to do, we have to create or we have to develop one application, okay, for basic operation or we can say EMI calculator. EMI calculator भी आपका simple work करता है. अगर आपने देखा होगा EMI calculator, तो आपका टोटल अमाउंट लेता है, नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती है. अगर आप लोग नो ब्रेक, हाँ, नो ब्रोकर, there are some application like no broker and magic break, which are the real estate property which show you the real for purpose, for buying and for renting also. अगर आपको रेंट पर लेना है या बाय करना है तो एक एप्लीकेशन है नो ब्रोकर. नो ब्रोकर में आप जो भी प्रॉपर्टी देखते हो, तो फॉर एग्जांपल आप बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 50 लाख की अगर प्रॉपर्टी है, तो नीचे उसका पूरा कैलकुलेशन जैसा होता है. तो इन दैट इट शोज कि आपको अगर कभी ये इसका अगर लोन करना है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना इतना है और टोटल अमाउंट 50 लाख है, तो आपका ईएमआई कितना बनता है. ओके, सो दैट ईएमआई कैलकुलेटर उन लोग ने किया है. so you can we can create one application. So after successfully creating the simple calculator, you can go for the EMI calculator also. Very simple, just you need the rate of interest and the total amount. Okay, and आप कितना कितना आपका ईएमआई कितनी बनेगी, उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं. आप कितने साल में चुकाना है वो सब इनपुट आप कैलकुलेशन करके आप उसको बता सकते हैं. सो दैट विल बी सिंपल. ओके, सो पहले हम लोग टारगेट करते हैं ड्राइंग और developing one simple application which will perform the basic operation like addition, subtraction, multiplication and division. Okay, तो इसके अंदर है तो बहुत सिंपल, बस उसके अंदर आपको कुछ करना है. क्या करना है कि आपको मतलब थोड़ा सा उसको मतलब you will take two numbers, okay, from the user will enter the number and when you click on that particular button, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया, कहाँ पर गया वो इमेज. ओके, इमेज एक बार देखो, आप लोग को सिंपल लगेगी. ठीक है, the image. Okay, so you will give the hint to the user that please enter number 1, please enter number 2. Okay, so user will enter two numbers over here. Okay, and after entering the numbers, okay, when you click on the plus button के ऊपर आपने एक action listener डालना. As we have put a lot of action listeners in the previous button, so we can put the action listener on this particular button, and on clicking that particular button, it will take the number from this field, it will take the number from this field, and then it will add those particular two numbers and then it will give it to you and it will show the answer over here. Okay, the answer is, for example, you have written 2 and 2, so 2 plus 2 become 4, 2 minus 2 becomes 0, 2 into 2, that multiplication becomes 4. Okay, in this way. So in this way we have to create one application. So just now tell me honestly that how many components are required over here. Okay, the very first component, that is first edit text, edit field, edit text field. Okay, एक text field यहाँ पर required है, एक text field यहाँ पे required है. Then we need 4 buttons and then we need one text view. Okay, this is the text view. Instead of this text view you can take the edit text also. आप यहाँ पर text field भी ले सकते हैं और text view भी ले सकते हैं. आपको जैसे यहाँ पर कुछ यूजर से एंटर नहीं करवाना है, आपको जस्ट खाली एक स्टेटमेंट, एक उसका आंसर डिस्प्ले करना है. ठीक है, so just for displaying the answer you can easily use this one. So to edit text, 4 buttons and one text view. Okay, right, and if you want to give some heading then you can give the heading also over here. ठीक है, using the text view you can give the heading also. So चलो स्टार्ट करते हैं. हाँ, काफ़ी टाइम हमारा निकल गया. ये दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर, आई थिंक कितना है ये, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है. ठीक है, रिमेंबर दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 10. लेट अस स्टार्ट दिस वन. So we need to create a new project. Okay, so I'm creating the empty project, empty activity, experiment number 10. Okay, experiment number 10. Let's finish, start the application. And the reason why I am just focusing on these kind of this application kind of experiment only. Okay, why I'm not focusing on the above one, because as you can see, implementation a Bluetooth network with ये आपका J2ME बेस है, NS बेस है, NS3 बेस है. मैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आप अभी पढ़ोगे, देखोगे, फिर आपको मतलब आप करके इसको भूल जाओगे. ठीक है, आपको इतना, अगर आप स्पेसिफिकली नेटवर्किंग फील्ड में जाते हो, then only you are going to use this kind of tool like NS2, NS3. Okay,
और J2ME तो बहुत पुराना हो गया है, ये तो होता भी नहीं है, लेकिन इन्होंने तरस खा के ना एक आध एक्सपेरिमेंट डाल दिया इसके अंदर, वरना ये तो हमारे ज़माने का है। जब हम लोग ने प्रैक्टिकल किया था, ये आपका MCC नाम का सब्जेक्ट है, बट हम लोग ने इसको दूसरे किसी सब्जेक्ट में किया था, तो हम लोग ने J2ME के बेस पर प्रैक्टिकल किए थे, तो वहाँ पर हम लोग ने 2-3 प्रैक्टिकल हमारे उस बेस पे होते थे, तो इन लोगों ने एक प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने डाल दिया, ठीक है। बाकी NH2 NH3 NH से तो आप लोग फैमिलियर हो, NH को यूज़ कैसे करते हैं, मैं इसके लिए ज़्यादा फोकस के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस के लिए कर रहा हूँ इन एक्सपेरिमेंट पर, क्योंकि इसके अंदर डेवलपमेंट पार्ट है, ठीक है। और डेवलपमेंट पार्ट आप जितना सीखेंगे, और ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा हुआ भी है, काफ़ी लोग इसको जानते भी है, तो ये जितना करेंगे तो उतना हमारा मतलब एक थोड़ा अच्छा एक पर्टिकुलर टूल में, कोई पर्टिकुलर थोड़ा सा डोमेन के अंदर हम लोग थोड़ा सा हैंड्स ऑन होंगे, सो दैट विल बी गुड, है ना। हमारी एक स्किल सेट हमारा बनेगा कि द एंड्रॉयड स्टूडियो, दोज हु डोंट नो, ओके, दे स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, ओके, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं ज़्यादा फोकस के ऊपर ही कर रहा हूँ, बिकॉज आपको ये फील्ड में जाना है, आप तो वो सब फील्ड में जाने से रहे, ठीक है, तो मैं इसलिए फोकस ज़्यादा यहाँ पे कर रहा था। चलो, हमारा बाय द वे हमारा यहाँ पर लोड हो गया हमारा प्रोजेक्ट, ओके। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू अकॉर्डिंग as per the promise, how many components are required over here? What we have discussed, we need 2 text field, we need 4 buttons and 1 text view, correct? So let me take these components, the required component. So first of all, I'm gonna take this. अच्छा, for the before that, let me take this. सबसे पहले मैं यहाँ पर सब चीज़ हटा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, okay? We'll start from scratch, okay? सो दिस इज माई स्क्रीन, यू कैन इजीली सी, ठीक है, आप लोग को दिख रही होंगी स्क्रीन, ओके। आप उसको थोड़ा सा लैंडस्केप में कर लेंगे तो दिख जाएगी, ठीक है, पोर्ट्रेट में उतना नहीं रहेगा फिजिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड वन हेडिंग, ओके, कैलकुलेटर, द बेसिक कैलकुलेटर आई नीड ओवर हियर, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर। अभी आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, ठीक है, आपको भी पता है कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, just to locate all these particular components, okay, and just placing all these component, and after placing you need to tie up with all the sides, okay, just change the name, and you need to change the size and whatever alignment, style, color, whatever you want to put, you can put all those things. So करना तो पड़ेगा, इसी से प्रैक्टिस होती है, ठीक है। So basically this is calculator, okay, this is my calculator, okay, whatever those things are there, whatever you want to do. So the text alignment you can put center, okay, text style you can put as a bold, okay, ये 3-4 तो मैं attributes हमेशा रखता हूँ, so if you wanna put you can रख सकते हैं आप लोग भी। size you wanna increase then 20 पॉइंट रखा हूँ मैंने। लेट्स सी कैसा दिखता है कैलकुलेटर, अच्छा दिख रहा है, बड़ा सा हेडिंग दिखता है, दैट्स अ गुड वन, ओके। नाउ वी स्टार्ट विथ 2 टेक्स्ट, दोनों उसने उसने दोनों टेक्स्ट फील्ड आजू बाजू में रखा था। आई एम गोना कीप दिस 2 टेक्स्ट फील्ड इन द one after another, okay, so this is my text field, this is the text, this is my plain text, and if you want that this particular text field will accept only numbers, and if you want that this particular text field will accept only the number, then you need to take this one। कौन सा है हमारा, ये फोन वाला आप ले सकते हो, ठीक है, या आप ये पासवर्ड वाला तो नहीं, प्लेन टेक्स्ट नहीं, नंबर वाला ले लो, वेयर इज द नंबर वाला, दिस नंबर वाला, ठीक है। सो इट विल एक्सेप्ट ओनली द नंबर्स, ओके, so it will not show the whole keyboard to us, it will show only the numeric keyboard, not alphanumeric, just the numeric keyboard, correct? So this is my first text field, this is my second text field, okay, I have kept one by one over here, okay, and now you need 4 buttons also। तो बटन पहले लाने से पहले what I am going to do, I am going to tie up with all these things, ठीक है। अब उसको टाइप करने से पहले आपको टाइप करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, लेकिन करना पड़ेगा। एक बार मैंने कहीं तो पढ़ा था कि इसका थोड़ा सा शॉर्ट वे भी है। इफ एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट दिस, हाउ वी कैन रिड्यूस द वर्क, इसको बाइंड करने का काम हम लोग शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, किसी के पास में आइडिया है तो प्लीज बताना। चलो, ये दोनों हो गए हैं, मैं एक के नीचे एक रख दिया हूँ। इफ यू वांट टू put the hint, then you can put the hint also for both the text view, ठीक है।
तो चलो ये हमारा एडिट टेक्स्ट, ये हमारा एडिट टेक्स्ट। ओके, so if I put the hint, then please type the hint, Android hint, enter number, नहीं, enter first number। ओके, और मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं हालांकि, बिकॉज ये काफ़ी आपको अब तक तो हो भी जाता है। एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, second number। Okay, after that you can place them in the middle if you want alignment। ठीक है, text alignment, center। ओके, तो जस्ट जो एट्रीब्यूट चाहिए वो एट्रीब्यूट अगर आप टाइप करेंगे तो खुद ब खुद आपको वो शो कर देगा, जैसे मुझे बताए थे आप लोगों ने लास्ट टाइम बताए थे। दैट वाज अ गुड आइडिया, यू कैन सी। सो एंटर सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर उल्टे भाई ऊपर नीचे हो गए, अदला बदली हो गई है, तो इसको हम लोग वापस से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको आपने मिडिल में तो रखा है बट यू वांट दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड टू बी एलोकेटेड विद द साइज ऑफ द विड्थ। ओके, इसकी जो विड्थ है इट विल टेक द साइज ऑफ द स्क्रीन, देन व्हाट यू गोना डू, रैप कंटेंट को आप मैच पैरेंट कर देंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर इसकी विड्थ को भी आप क्या कर देंगे, मैच पैरेंट कर देंगे। ठीक है, so you have done। नाउ गो टू द डिज़ाइन पार्ट एंड सी। नो, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, या अगर आपको उतना कॉम्पैक्ट रखना है तो आप कॉम्पैक्ट भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। हर किसी का डिज़ाइन अलग अलग है। इन द नेक्स्ट सेमेस्टर वी हैव सब्जेक्ट लाइक HMI, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। Unfortunately that subject is going to be taken by me only, so in that particular subject you are going to learn, and you will learn the human psychology। Okay, and you will learn how the components are to be placed, and what type of component to be placed on the screen, on the first screen। Okay, and which type and which color। Okay, and it should be in a bold or not। Okay, so each and everything about that particular presentation part, how you're going to present the thing in front of the user। Okay, so that is very very important for each and every product। Okay, so that वो पार्ट हम लोग अपने HMI में करेंगे, पढ़ेंगे, सब करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर वापस आते हैं। अगर आप इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट का साइज अगर आपको बढ़ाना है, देन यू कैन इंक्रीज द टेक्स्ट साइज आल्सो, बिकॉज छोटा है दिख नहीं रहा है। तो चलो बढ़ाते हैं, साइज बढ़ाते हैं, टेक्स्ट का साइज बढ़ाते हैं, हम लोग करते हैं 10। ओके, सो 10 इज इनफ आई थिंक सो। अबे बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? आना मैं क्या वापस से फंक्शन चल रहा है लगता है आनंद के घर पे। Okay, now it looks good. Enter first number, enter second number। Okay, now this part is done. Now you need four buttons। Okay, four buttons for what you want to do. You have to make the addition, subtraction, whatever you want to do. So you can we have to take four buttons according to the screenshot what I saw, what we have seen। So this is the simple button I'm taking। Okay, so you can keep one button one by one सारे बटन आप लोग रख सकते हैं अगर आपको रखना है तो, या अगर आपको ऐसे प्लेस करना है तो ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं। सो चलो थोड़ा हम लोग इसको अलग वे में प्लेस करते हैं। ये मेरा बटन आ गया। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको उठा के ज़रा ठिकाने लगा दूँ, ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड लगते हैं इसको करने में, लेकिन हो गया, एक बार हो गया तो फिर आप इसको कहीं लूप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज डन, दिस इज बटन नंबर 1। इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। देखो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो आपका ये आ गया बटन 2। ओके, सेम लाइनिंग पे ले लिया, कंट्रोल V कर दिया वापस से, तो और एक बटन आ गया, वापस से कर दिया तो ये और एक बटन आ गया। ठीक है, तो आप बटन्स को भी क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा बड़ा करो बटन, ज़रा अच्छे से, UI मस्त दिखना चाहिए आपके अंदर, फंक्शनैलिटी हो ना हो लेकिन UI अच्छे से दिखना चाहिए। ओके, ये भी है, ये भी है। देखो, the interesting thing is that you have copied the things whatever after binding it up, you have copied the button। so बाकी को करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिक लाइन पे आ गए। ठीक है, हाँ, इनको भी थोड़ा बड़ा कर दो भाई। एक काम करते हैं ना हम लोग, जो साइज का चाहिए पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, वरना फिर सबको एक साइज पे लाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया मेरा बटन, एक बटन हुआ, ठीक है। अब इसी को कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। चलो भाई साहब आ गए हमारे बटन, पार्सल आ गया है। you need to make sure that के देखो in computer human machine interaction and in the graphical user interface, this thing is very important. How much space we are keeping between the boundary and this button, okay? So it is around XYZ जो भी है, x distance है, and this x distance we have to maintain over here also, तो otherwise आपका जो ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना कैसा है फिर यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस है, वहाँ पर कम डिस्टेंस है, थोड़ा कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सो यू नीड टू कीप, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ओके। तो चलो ये हमारे 4 बटन आ गए, ऑलरेडी बाइंडेड है, ऊपर नीचे सब जगह बांध के रख दिया हम लोग ने रस्सी से। चलो लेट अस स्टार्ट विद चेंजिंग द नेम, ठीक है। तो ये बटन 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 4 बटन ऑटोमेटिकली आ गए। इस बटन का आईडी है बटन, इसका आईडी है बटन 5, इसका है बटन 6, इसका है बटन 7, ठीक है। तो आईडी याद में रखो, एक का है बटन 5, 6, 7, 4 बटन। आगे चल के काम पड़ने वाला है, इसके लिए बोलो। You can change the text size also, they can keep it 10 point, okay। So I think that is enough, खाली size change कर लेंगे। अच्छा नाम भी तो change करना है मेरे भाई। Addition, okay, first is addition, the second is subtraction, no subtraction, okay। second thing आपको जो करना है वो text का, आपको text का size change करना है, you have to keep it at 10 point, okay। for third button, first let me change the, first let me change the name of that multiplication, अरे कैसा हो गया, multiplication and after that, अरे भाई चलो डन। और इसका चलो पहले नाम कर देते हैं, दैट इज डिवाइजन, ठीक है। Let me change the text size, text size will be 10 point, done। text size that is 10 point, ओके डन। इसके बाद में अब क्या बचा, सब तो काम हो गया, ऑलमोस्ट सब काम हो गया है। the last thing you have to do is that you need to display the answer, okay। after clicking this particular button, after clicking this particular button, the answer will be displayed over here, so you need one text view, okay। सिंपल एक text view हमको लगेगा, यहाँ पर आपके आंसर्स को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। so keep this one, I'll just tie it up with the, आप ऊपर वाले को भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे, चलो आपके लिए मैं कर देता हूँ, थोड़ा ऐसा टाइम बचाना सीख गए आप लोग तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कंट्रोल भी, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया उसको, ऑल ऑटोमेटिक आ गया है। अब क्या करना का है भाई, आपको जाकर कहीं आपका एडिट टेक्स्ट हो, टेक्स्ट यहाँ पर आया है, देखो आपका नया वाला, ठीक है। आंसर इज कितना लिख दिए, काफ़ी है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें में इसका जो साइज है, यू कैन चेंज द साइज टू 10, इतना बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, वो तो हेडिंग थी, ये आपका हेडिंग नहीं है, ओके। आंसर इज, वो आपका आंसर आप बाद में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके। नाउ गो टू द जावा पार्ट, ओके। जावा फाइल में जाते हैं हम फटाफट, देखो ये ऐसे होता है, जब कोई एप्लीकेशन आप क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं में खाली जॉई पार्ट में पूरा टाइम निकल जाता है। इट इज ऑलमोस्ट 2:45 2:42 हो रहे, वी आर डन विद द जीयूआई पार्ट ओनली, दैट इज वी हैव डन द ग्राफिक पार्ट, जब हम लोग ने डिजाइन पार्ट कंप्लीट किया है। एंड नाउ आफ्टर डिजाइनिंग पार्ट वी हैव दिस कोडिंग पार्ट, ओके। चलो जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव इन द डिजाइन पार्ट, फर्स्ट वी हैव अ टेक्स्ट, इसका हम लोग कुछ काम नहीं है, ठीक है। इसका हम लोग कुछ काम नहीं है, पहले 2 टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आप कुछ आपको सो फर्स्ट दिस फर्स्ट 2 टेक्स्ट फील्ड, चलो टेक्स्ट फील्ड स्टार्ट करते हैं।
टेक्स्ट फील्ड को हम लोग लिखते हैं एडिट टेक्स्ट व्हाट यू आर टेकिंग द फर्स्ट नंबर ना, तो FN लिखता हूँ मैं, एंड उसके बाद में सेकंड नंबर SN, ओके डन। 2 एडिट टेक्स्ट हो गए। देन वी हैव 4 बटन आपका एडिशन, एड, कॉमा, सब, कॉमा, मल, कॉमा, div, correct? So you have declared 4 buttons also. After that you have, what you have, let me remember, 4 buttons, 2 text field, 1 text view. That text view is going to be used when you are going to display this particular answer of the 2 number, addition, subtraction, whatever. So this text will be replaced by the answer, okay? ये वाला जो नीचे वाला जो टेक्स्ट है दैट विल बी रिप्लेस बाय द आंसर, ओके। इसके हमको उसको यूज करना है, और अगर यूज करना है तो उसको हम लोग को फिर लिखना पड़ेगा, दैट इज टेक्स्ट व्यू को आंसर करके आप मैं ANS करके लिख देता हूँ। देखो दिस इज द ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस दैट यू विल कीप द वट एवर ऑब्जेक्ट यू आर क्रिएटिंग, तो उसका आप लोग में जब अच्छे से उसका नाम मेंशन करेंगे, so later on if you are having multiple components, then you can easily come to know that this text view is for the answer. This ADD is nothing but the button for addition. अच्छा, अगर मैं बटन लेता, बटन A, बटन B, बटन C, बटन D, so from these numbers, how you will come to know that A belongs to which one, addition, subtraction, multiplication or division. So just this naming convention is very important whenever you are programming, so you need to keep this thing in mind. I think आप लोग में से काफ़ी लोग करते भी हैं ऐसा, जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कम से कम इसको हम लोग को फॉलो करना है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आपके बटन से, एडिट टेक्स्ट से, बटन से आप लोग जिससे भी स्टार्ट करना चाहें। FN इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, ओके, R.ID. अब आपके FN की ID क्या है? FN की ID के लिए आपको FN के इसमें जाना पड़ेगा, इसके कोड पार्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग एट्रीब्यूट से भी चेक कर लेते हैं। आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर की ID क्या है? बताओ भाई ID क्या है, जल्दी बताओ। ID इज, ID कहाँ दिखाता है स्क्रीन पे? भाई ऐसा मत करो, एडिट टेक्स्ट ना, एडिट टेक्स्ट नंबर देखते हैं, एडिट टेक्स्ट नंबर कहाँ पर है? दो मिनट। ओके डन। मैं एक्चुअली कुछ डिस्टर्ब हो गया था। चलो यहाँ पर हम लोग को आईडी पता चल गई है, आईडी पता चल गई है। आईडी कहाँ से पता चली हम लोग को? सोर्स से पता चली, यहाँ पर भी आती है एट्रीब्यूट्स के अंदर अभी, लेकिन वो देखना पड़ेगा कहाँ पे आती है, कहाँ पर है आईडी। वैसा है कि देख के रखी है, नीचे नहीं जाती है आईडी, आईडी तो ऊपर ही रहती है, नीचे क्यों नहीं दिख रही है ये आईडी, ठीक है। तो आईडी ये है, सामने थी लेकिन वो एक्चुअली जो ऑप्शन था वो एक्सपांड नहीं था, कोलैप्स था। तो एडिट टेक्स्ट नंबर दिस इज द आईडी। सो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट नंबर, ये वाला ले लिया,
सेमीकोलन बाहर आ गया। सेकंड नंबर SN इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID R डॉट ID डॉट एडिट टेक्स्ट नंबर, आपको सेकंड वाला लेना पड़ेगा और आपको वापस देख लेना पड़ेगा कि आपका जो ये वाला है दैट इज द सेकंड टेक्स्ट फील्ड, इसका ID क्या है, द ID इज नंबर 2। ओके, so number 2 edit text number 2 done, this is also done. Now you have 4 buttons also, ADD is equal to find। अब आपको तो पता है हम लोगों ने जब मैंने इसको डिक्लेयर किया था तो आपको मैंने याद दिलाया था कि फर्स्ट वाले का नाम सिर्फ बटन है, ओके, सेकंड वाले का नाम एड सब, फाइंड व्यू बाय ID R डॉट ID डॉट बटन 2, बटन 5 है। ओके, मैंने सीरीज में रखा था, आपको याद होगा अगर आपने देखा होगा तो। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID R डॉट ID डॉट बटन नंबर 5 BUTT 6। देन उसके बाद में डिवीजन DIV इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID R डॉट ID डॉट बटन नंबर 7। डन, ये भी आपका हो गया। आपको टेक्स्ट व्यू को भी यूज़ करना है तो अंक इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID R डॉट ID डॉट आपका टेक्स्ट का क्या है ID, जिस टेक्स्ट व्यू का ID है टेक्स्ट व्यू 3। ओके, सो गो टू द टेक्स्ट व्यू 3, करेक्ट। सो नाउ दिस इज डन। अब आपको करना ये है, कि अब आपको सबसे एड डॉट सेट, अब आपको क्या करना है, हर बटन के ऊपर आपको एक्शन लिस्ट में डालना है, ठीक है। सो एड आपका फर्स्ट वाला बटन, द फर्स्ट बटन इज योर ADD डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू। ओके डन, ये आपका हो गया फर्स्ट वाला। मैं जाता हूँ इसके पास में और आपको जो भी अब एडिशन बटन से आपको जो भी परफॉर्म करवाना है आप उससे करवा लो। सब्ट्रैक्शन बटन सब डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू टर्न क्लिक ऑटो जनरेटेड स्टब, ठीक है। आप तीसरे बटन पे आ जाओ, एड सब के बाद में हो गया मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल, सॉरी क्या करो, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, डन, दिस इज ऑल्सो डन नाउ। उसके बाद में डिवीजन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, जो भी कोड अगर आपको उसमें डालना है तो वो आप उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। तो जब हम लोग ने 4 जनरेट कर लिए, वी डोंट हैव मच टाइम। अब जो भी आपको उसके अंदर कोड डालना है एडिशन करने के लिए, एडिशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू टेक, यूजर हैज ऑलरेडी एंटर्ड द नंबर ओवर हियर इन द फर्स्ट नंबर एंड इन द सेकंड नंबर। ओके, जब यूजर ने एंटर कर दिया है तो अब हमारा काम क्या है, आफ्टर क्लिकिंग दिस एडिशन बटन, ये जो आपका है पर्टिकुलर, हाँ, यहाँ पर आपको क्या कोड डालना है, कोड आपको ये डालना है कि इट विल कॉपी द नंबर फ्रॉम दिस टेक्स्ट फील्ड एंड इट विल कॉपी द नंबर फ्रॉम दिस टेक्स्ट फील्ड, इट विल कॉपी द नंबर फ्रॉम बोथ द टेक्स्ट फील्ड, इट विल ऐड इट एंड इट विल शो द आंसर, ओके, इनटू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर एक मेथड यूज करना पड़ेगा दैट इज सेट टेक्स्ट। ओके, जब भी आपको टेक्स्ट व्यू से या एडिट टेक्स्ट से, जब भी आपको टेक्स्ट व्यू से, देखो जहाँ पर मेरा कर्सर है वो देखो, जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट व्यू से या एडिट टेक्स्ट से अगर आपको कुछ टेक्स्ट को गेट करना होता है तो उसके लिए गेट टेक्स्ट आप यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को सेट करना है, कुछ टेक्स्ट को आपको डिस्प्ले करना है, तो इन दैट केस यू विल यूज द set text method. Okay, so get text and set text method can be used for edit text, this is the आपकी ये वाला edit text है, ये वाला edit text है, and the text view, दोनों जगह से आप यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ तक इतना हमारा हुआ है। अब हमको करना सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको कोड डालना है, ठीक है। तो कोड में क्या जाएगा, सबसे पहले आपका कोड में आएगा, यहाँ से पहले आपको टेक्स्ट उठाना है, फिर यहाँ से उठाना है, दोनों जगह से कोड उठाना है और दोनों को ऐड करके आपको उसका आंसर डिस्प्ले करना है। ये काम आप यहाँ करेंगे, वही सेम काम आप यहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म आपका सब्ट्रैक्शन होगा।
वही काम आप लोग यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, और वही काम आप लोग यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिविजन होगा. That's all for the calculator application. Okay, so we'll stop over here, and we'll try to finish this application in the next practical, in the next I think next Friday को हम लोग करेंगे, and we'll try to do that particular EMI calculator also if possible. Then we'll try to do that also. ठीक है, so thank you so much. यहाँ तक हुआ है. If you people can proceed with the same status, you can proceed, then you can proceed and complete the application. Okay, thank you so much.